Hello everyone. In this video of microprocessor and interfacing devices, I am explaining 8086 pin configuration. So this is part A of this video. In this video, I am explaining around 32 pins of 8086 microprocessor and remaining pins will be explained in next video. So 8086, we know that 8086 is an integrated IC with 40 pins. So 20 pins are on this side and 20 pins are on this side. Now when pins are shown, here you can see the directions of pins are also shown. Here it is shown that arrow is on both sides. That indicates that this pin is bidirectional. That means data flows in both directions. On this pin, data is flowing in the outward direction. In this pin, these are input pins. These are output pins. Again, these three are input pins. So these arrows indicates the direction of data flow. Now in this pin, you can see that some pins are active high and some pins are active low. When bar is there like this, you can see this maximum bar, minimum slash maximum bar. So whenever there is a bar like this on the pin, it indicates that it is active low. And when there is no bar on the pin, you can see here on hold, there is no bar. So it indicates that this pin is active high. What is the meaning of active low and active high? Active high means it is active when we apply logic 1 at that pin. Logic 1 means we have to apply 5 volt to make that pin active. And active low means that pin is active when we apply logic 0 to that pin. Logic 0 means we have to apply 0 volt to that pin to make it active. Now in this pin diagram, you can see that this is ground pin of 8086 and there is one more ground pin in 8086. So very simple, in any IC, we always apply ground to the ground pins. Now here you can see pin number 40 is VCC. Since 8086 is digital device, we have to connect 5 volt. That means 5 volt DC means it is like a logic 1 applied to VCC pin. Okay. Now pin number 33 is minimum slash maximum bar pin. You can see in this diagram. This is pin number 33, which is minimum slash maximum bar pin. Here you can see that minimum is active high and maximum is active low because bar is available on maximum bar. Now what is the meaning of this pin? Now 8086 operates in two modes, that is minimum mode and maximum mode. Now what is meaning of minimum mode? Let us take an example of any system, any application in which if there is only one 8086, then it is said that 8086 is operating in minimum mode. What is maximum mode? In this diagram, you can see that there are two processors, 8086 and 8087. जब भी किसी भी सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोसेसर होगा तो उसे बोलेंगे 8086 इज ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड. अगर किसी एप्लीकेशन में डिजाइन में एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे, हियर यू कैन सी 8086 एंड 8087, तो उसको बोलेंगे 8086 इज ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड. सिंपल लैंग्वेज, 18086 मिनिमम मोड, more than 18086 maximum mode. Okay. Now when we want to use 8086 in minimum mode, this pin should be at logic 1. इसका मतलब क्या है? Because minimum is active high. You can see minimum is active high. तो अगर minimum mode में use करना है, अगर उस सिस्टम में हमें एक ही 8086 यूज करना है तो उसे हम क्या अप्लाई करेंगे? 5 वोल्ट डीसी अप्लाई करेंगे. और अगर मैक्सिमम मोड में अप्लाई करना है तो मैक्सिमम इज एक्टिव लो, तो यहाँ पे इस पिन पे हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? 0 वोल्ट. व्हेन वी यूज दिस 8086 इन मिनिमम मोड, तो ये जो पिन नंबर 24 to 31 है, दिस पिन्स विल परफॉर्म these function means hold, HLDA, write bar, memory slash IO bar, DT. Okay. And when we use this 8086,
in maximum mode, then same pins are same, they will perform these functions. You can see request slash grant 0, log, S2, S1, S0 bar and so on. अभी देखो पिन सेम है, पिन्स डिफरेंट नहीं है, लेकिन पिन्स डिफरेंट फंक्शन कर रही है, उसका ऑपरेशन डिफरेंट है व्हेन दे ऑपरेट इन मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड. सो याद रखना है, व्हेन 8086 ऑपरेट्स इन मिनिमम मोड this will be the pin function and when it operates in maximum mode this will be the pin function. ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे while studying minimum and maximum mode of 8086. Now clock signal, pin number 19. See here, this is pin number 19, which is clock signal. Now this is incoming. Incoming means we have to apply clock signal at pin number 19. So how to apply clock? We have to apply this clock signal at pin number 90. And this clock we apply through 8284 clock generator IC. Here you can see I have written frequency of this clock may be 5 megahertz, 8 megahertz or 10 megahertz. Why only these three frequencies? Because we already studied that 8086 operates on three frequencies, on 5 megahertz, 8 megahertz and 10 megahertz. So we can apply any of these three. It is written that it provides timing to the processor. What it does? It provides timing to the processor. What is the meaning of this? You can see this is clock cycle. Let's consider this one T state, one clock cycle. One clock cycle of this clock is known as one T state. तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा T state and third T states and so on. So after every one clock cycle or after every one T state, microprocessor perform some operation. हर एक T state के बाद microprocessor कुछ ना कुछ काम करता है अंदर. तो अभी अगर इसका फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज है तो ये क्या हो गया, हमारा टाइम पीरियड हो गया, टाइम t इज इक्वल टू 1/f. वी ऑल नो दिस इक्वेशन. तो ये हो गया टाइम पीरियड. अगर फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी 10 मेगाहर्ट्ज तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज मोर द टाइम ड्यूरेशन इज लेस. What I said, 8086 performs some operation after every T state. तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो वो टाइम पीरियड हमारा कम हो जाएगा, काम करने का टाइम कम है, यानी कम टाइम में सेम काम करना है. So what will happen? It will increase the speed of 8086 microprocessor if we use higher frequency clock. Now let's go to the next pin, that is reset pin. See here, reset pin, it is pin number 21. It is active high because there is no bar above this reset. That means it is active when we apply logic 1 at this pin. So what we have to apply? We have to give here 5 volt DC supply. Now reset pin हम सबको पता है, हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस में reset pin होता है, मिक्सी में होता है, आपका वाईफाई का राउटर है उसमें होता है, कुछ गीजर्स में भी reset pin होता है. So why we reset that appliance? To restart the execution. Similarly, 8086 also has this reset pin. Whenever we apply this 5 volt signal or whenever we apply logic 1 on this pin number 21, 8086 क्या हो जाता है, reset हो जाता है. Reset हो जाता है मतलब क्या होता है कि इसमें सारे सेगमेंट रजिस्टर, जैसे कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, सारे सेगमेंट रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, फ्लैग्स, क्यू, सब अगर कुछ डेटा उसमें ऑलरेडी सेव्ड है तो सब क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा. ऑल रजिस्टर्स आर 16 बिट रजिस्टर्स, तो सब रजिस्टर्स का कंटेंट क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा व्हेन वी अप्लाई रीसेट. नाउ नेक्स्ट पिन इज रेडी पिन. अगेन रेडी पिन इज ऑल्सो एक्टिव हाई सिग्नल. When it is high, it indicates that device is ready to transfer data. What is the meaning of this? This ready pin, ये नाम कैसे है, ready? Ready is used for synchronization. यानी whenever we want to apply some
connect some device to 8086. Suppose I want to connect this device. This device may be anything, maybe input device or output device, maybe keyboard or monitor, printer, scanner, anything, microphone. जब भी हम लोग ये एक्सटर्नल डिवाइस प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं तो दोनों में क्या होना चाहिए, स्पीड मैच होना चाहिए. अगर स्पीड मैच नहीं हुआ तो दैट विल क्रिएट एन एरर इन द ऑपरेशन. और रेडी पिन किस लिए है? रेडी पिन इज फॉर सिंक्रोनाइजिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस डिवाइस एंड माइक्रोप्रोसेसर. कैसे सिंक्रोनाइज करता है? Generally, see, microprocessor is very fast device. You can see here it operates on such a high frequency, and these devices are comparatively slow. So what happens whenever this device is ready to communicate with 8086, it will send this logic 1 on this microprocessor. और जब microprocessor ये 1 receive कर देगा, then it will initiate the data transfer. Let's take a layman example. सपोज कोई एक टीचर है, टीचर का ब्रेन है वो 8086 माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू ब्रेन. इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो 8086 एक टीचर का ब्रेन है और ये है एक स्टूडेंट का है. तो दिस टीचर वांट्स टू सेंड डेटा टू स्टूडेंट. दिस टीचर वांट्स टू सेंड डेटा टू स्टूडेंट, यानी अपने ब्रेन से उसे स्टूडेंट के ब्रेन में डेटा ट्रांसफर करना है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है. लेकिन वो कब कर सकता है? जब डिवाइस बोलेगा, जब वो स्टूडेंट बोलेगा कि ओके माय ब्रेन इज रेडी टू रिसीव द डेटा ट्रांसफर, डेटा दैट यू वांट टू ट्रांसफर. जब ये स्टूडेंट बोलेगा कि मेरा ब्रेन रेडी है, when it will send logic 1 to microprocessor, then only processor can transfer a data to this device. या फिर अगर डिवाइस को भी डेटा ट्रांसफर करना है, अगर स्टूडेंट को भी अपने ब्रेन से टीचर के ब्रेन में कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, तो स्टूडेंट को पहले माइक्रोप्रोसेसर को बताना होगा कि माय डेटा, माय इंफॉर्मेशन इज रेडी टू ट्रांसमिट. और ये रेडी टू ट्रांसमिट कैसे बताएगा? बाय सेंडिंग लॉजिक 1 टू on this ready pin to 8086 microprocessor. So understand that this ready pin is only for synchronization of speed of device and microprocessor. Now let's go for next pins. Now in this slide I am going to explain AD0 to AD15, AD16 to AD19, memory / IO bar and ALE pin. So let's start with this memory / IO bar. इसका मीनिंग क्या है? memory / input output bar. Now again in this pin memory is active high and input output is active low because bar is there. Okay, now let's assume that this is 8086 and this is any memory. This is location of memory. एक कोई तो रजिस्टर है जिसका एड्रेस है, you know that in 8086 the address of memory is a 20 bit. So इसका एड्रेस है 20005. तो इसका एड्रेस होगा 20006. सपोज इसमें ये एक डेटा है 11110000 जिसको हेक्स में हम लिखेंगे F0H, और इस लोकेशन पे ये डेटा है जिसको हेक्स में लिखेंगे AAH, क्योंकि 1010 इज A. सो दिस इज AD0 to AD15 pins. AD0 to AD15 pins. This is A16 to A19 pin. This is address data bus and this is address bus. And this is memory / IO bar pin. Now, this pin decides with which device 8086 is communicating. अगर हमें प्रोसेसर को मेमोरी कनेक्ट करना है तो यहाँ इस पिन पे क्या कनेक्ट करना होगा? लॉजिक 1 अप्लाई करना होगा, यानी 5 वोल्ट डीसी देना होगा. और अगर इस 8086 को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करना है मतलब क्या करना है? डेटा ट्रांसफर करना है या डेटा रिसीव करना है. अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे क्या देना होगा? 0. Now since in this diagram we have connected memory to 8086, अभी 8086 wants to communicate with memory, so this pin should be at logic 1. Logic 1 means 5 volt DC supply. So this is the use of this pin. This pin decides to which device 8086 wants to communicate. Now let's go to the
next pin, that is AD0 to AD15. As name suggests, this is address data 0 to address data 15. This is address data multiplexed bus. Now remember, अब तक हमने क्या पढ़ा है 8086 में कि there are 20 address pins and there are 16 data pins. इसके पहले वाले जितने भी वीडियोस है उसमें मैंने आपको सबको कम्युनिकेशन दिखाया कि कैसे 8086 एड्रेस भेजता है और कैसे डेटा फेच करता है. I have shown you that there is unidirectional address bus and bidirectional data bus. लेकिन 8086 में ये जो AD0 to AD15 है ये मल्टीप्लेक्स्ड है. Multiplexed, what is meaning of AD0 to AD15 address data multiplexed bus? Meaning is bus is one. एड्रेस के लिए और डेटा के लिए एक ही बस है. एक ही बस है मतलब एक ही बंडल ऑफ वायर है. 16 वायर सेम है. ओके लेकिन ये सेपरेट है. A16 टू A19 जो है, जो रिमेनिंग 4 बिट्स के लिए जो एड्रेस बस है दैट इज सेपरेट. बट AD0 टू AD15 इज मल्टीप्लेक्स, मतलब वही वायर्स पे एड्रेस भी फ्लो होगा और उसी वायर पे डेटा भी फ्लो होगा. लेकिन ये कैसे होता है, लेट्स सी. So what is meaning of address data multiplex bus? Same bus is used for address as well as data. Or on the same bus, address is also flowing and data is also flowing. So how it takes place? Let's see. Again, I have shown you how this data is stored. अभी suppose ये data जो memory में store किया है वो हमें 8086 को send करना है. तो 8086 को क्या करना होगा, ये सबसे पहले एड्रेस भेजना होगा. Now this is 16 bits, AD0 to AD15, ये 16 है और ये 4 है. तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसमें से 2000 इसमें जाएगा और ये जो 5 है, ये जो 4 बिट है, दिस इज इन हेक्स. ओके तो ये जो 5 है ये 4 बिट्स इस बस पे जाएगा. दैट मीन्स A16 टू A19 बस पे. सो इट विल गो टू द मेमोरी. नाउ on the same bus data will flow. Now if on the same bus data flows, ये एड्रेस जो है वो निकल जाएगा, हमारा लॉस्ट हो जाएगा and we should not lose this data. So there is one provision. There is a provision of octal latch. कभी भी हम लोग सिस्टम में जब भी 8086 को मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, दैट इज 8282 ऑक्टल लैच. ऑक्टल लैच क्या करता है, ऑक्टल लैच कंसिस्ट ऑफ 8 फ्लिप फ्लॉप्स. दिस लैच इज आल्सो यूज्ड टू स्टोर डेटा बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑक्टल लैच किस लिए यूज कर रहे हैं, फॉर स्टोरिंग दिस एड्रेस, क्योंकि अभी सेम बस पे डेटा फ्लो होने वाला है. तो ये जो एड्रेस है वो कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए और उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्टल लैच. वी आर यूजिंग 3 ऑक्टल लैच क्योंकि एक जो ऑक्टल लैच है वो सिर्फ 8 बिट ही यूज करेगी. हमारा एड्रेस का साइज है 20 बिट, तो हमें मिनिमम 3 ऑक्टल लैच की जरूरत है. सो व्हाट विल हैपन, so in 8086 there is one pin that is known as address latch enable pin. This is address latch enable pin. ये पिन किस लिए यूज होता है, दिस पिन इज यूज टू एक्टिवेट दिस ऑक्टल लैच. दिस ALE पिन, एड्रेस लैच एनेबल पिन, इज यूज टू एक्टिवेट द ऑक्टल लैच. इट हैज वन स्ट्रोक पिन. ये ऑक्टल लैच का पिन का नेम है और ये ALE के साथ हमें क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है. सो व्हाट a microprocessor does, microprocessor transmits this pulse to the octal latch. As soon as octal latch receives this pulse on strobe signal, it will activate the latch and it will store this address. ये जो यहाँ पे जो एड्रेस था, जो एड्रेस बस पे था, वो इसने क्या किया, ऑक्टल लैच ने सेव कर दिया. कैसे सेव किया, क्योंकि ये एड्रेस बस जो है ये यहाँ से इसको भी कनेक्टेड होगा. यहाँ here I did not show you but these connections are there. और अभी सेम बस पे क्या होगा, डेटा फ्लो होगा. So understood, here AD0 to AD15, first on the same bus address was flowing and now on the same bus data is flowing. So same bus is used for transferring the address as well as for transferring the data, and this concept is known as address data multiplexed bus, AD0 to
15 and A16 to A19 are separate address bus. So I hope you understood the address data multiplexed concept. Now next is read pin. Read pin is pin number 32. Now again I have shown the same 8086, this memory. Suppose this is any location of memory and its address is 20005. Same address data multiplex bus is here. Your address bus is here. Now here, what is it is active low. Read bar is active low. That means it is active when it is low. It stands for read signal. It is used to read the data from memory or the input device depending on status of memory/IO signal. Yes, obviously, if processor wants to communicate with memory, this should be 1. If processor wants to communicate with input output device, this should be 0. And based on this, 8086 will either communicate with memory or with input output device. Now what is written? It is used to read the data from memory. Read करना है, memory से data read करना है. अगर आपको कुछ एग्जाम है तो आप आपके नोटबुक से रीड करते हो मतलब डेटा कहाँ से कहाँ, इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है आपकी नोटबुक से आपके ब्रेन में. अभी 8086 है आपका ब्रेन और ये है आपका मेमोरी मतलब नोटबुक. तो रीड में क्या होना चाहिए? डेटा शुड फ्लो फ्रॉम मेमोरी टू 8086. डेटा शुड फ्लो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम मेमोरी टू 8086. उसके लिए 8086 क्या करेगा? इट विल सेंड अ रीड बार सिग्नल. नो इट इज एक्टिव लो, सो इट विल सेंड 0. So first of all, what will happen? 8086 will transfer this address. ये 2000 on 80 to 8015 I explained you in the previous slide and 5 on this bus. Okay. Now what will happen? It will send logic 0. Now this read bar of 8086 is connected to read bar of memory. Memory के पास भी एक read bar pin है क्योंकि ये भी IC ही है. तो ये क्या करेगा? It is active low, so it will transfer this 0 to memory. And then what memory does? Memory will transfer this data to 8086. I have shown this example only with 8 bit of data. Transfer of 8 bit of data. So this is read operation. Data is flowing from memory to 8086. उस टाइम पे आपका read bar pin क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए और इसको 86 will transfer this 0 to memory. So this is use of read bar pin. Now next is write bar pin. अभी आपको नोटबुक में लिखना है अपने मन से. तो इंफॉर्मेशन इज देयर इन योर ब्रेन. तो अभी इंफॉर्मेशन क्या है? ये देखो, दिस इज बाइट विच इज देयर इन द 8086 means that is there in your brain. Now you want to write it in your notebook. तो उसको क्या बोलेंगे? You want to transfer information from your brain to notebook. तो उसको हम क्या करते हैं? राइट करते हैं. तो इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? राइट ऑपरेशन बोलेंगे. राइट ऑपरेशन में क्या होगा? डेटा विल फ्लो फ्रॉम 8086 टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेस्ड ऑन व्हाट इज कनेक्टेड हियर. नाउ as read bar signal there is write bar signal. Same again I have shown this AD0 to AD15 bus. It is address data multiplex bus and A16 to A19. अभी हमें ये जो डेटा है जो 8086 के पास है वो कहाँ स्टोर करना है? 2003 में करना है. अभी ये 5 में ये एक डेटा था लेकिन ये अभी हमें कहाँ करना है? इस लोकेशन पे ट्रांसफर करना है. वी आर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम 86 टू मेमोरी. तो राइट बार इज अगेन एक्टिव लो पिन. सो इसमें भी क्या होगा? इट हैज टू ट्रांसफर दिस 0 टू मेमोरी. सो फर्स्ट इट विल ट्रांसफर एड्रेस. नाउ हियर this is 3, it is not 5 because 86 wants to write in this location. यहाँ पे लिखना है, इस लोकेशन पे लिखना है इसलिए. Okay, and then it will also transfer 0. 86 transferred 0 to write bar pin of memory, and now 86 will transfer this byte to memory. इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? राइट ऑपरेशन बोलेंगे. सो रीड ऑपरेशन इज डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू 8086. दैट टाइम रीड बार इज 0
and write operation is data transfer from 86 to memory. That time write bar pin should be 0. At a time either read bar is 0 or write bar is 0. ये दोनों पिन एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 8086 एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन करेगा, या तो रीडिंग ऑपरेशन करेगा या राइटिंग ऑपरेशन करेगा. एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आप भी या तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम आप रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो. तो सिमिलरली 8086 विल ईदर रीड और राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली वन पिन शुड बी 0. अगर ये राइट बार ऑपरेशन है तो रीड बार उस टाइम पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. So let's start with DEN bar or DT/R bar. DEN bar means it is data enable bar, and this is data transmit/receive bar. Now remember that whenever we connect, this is memory, whenever we connect memory to 8086, we always connect 8286 octal bus transceiver in between. हम लोग कभी भी मेमोरी को 8086 के साथ डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करते हैं, बीच में हम हमेशा कनेक्ट करेंगे 8286 ऑक्टल बस ट्रांस रिसीवर. दिस 8286 बस ट्रांस रिसीवर इज नथिंग बट बफर आईसी. In buffer IC, the output and input will remain same, and buffers are used for increasing the current carrying capacities of wire. क्योंकि बहुत सारे जब हम डिवाइसेस 8086 को कनेक्ट करते हैं तो वायर्स का करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, और वो इम्प्रूव करने के लिए हमेशा 8286 बस ट्रांस रिसीवर का यूज होता है. ये भी इंटेल का ही आईसी है, दिस इज नॉट प्रोसेसर. इसमें एक पिन है OE बार, दिस इज एक्टिव लो. इसका मतलब है आउटपुट एनेबल बार. Whenever processor transmits 0 on this pin, this will become active. This IC becomes active or it will activate the buffers. तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, DEN बार के साथ. DEN बार is pin of 8086 which is known as data enable bar pin. So this is also active low and this is also active low. Active low means they are active when they transmit or receive 0. So this OE bar of 8286 is connected to DEN of 8086, और वो इसके ऊपर क्या सेंड करेगा, 0 सेंड करेगा. और दूसरा पिन है 8286 का, that is T pin. T pin is nothing but it is transmit pin. This transmit pin of 8286 is connected to DT/R bar of 8086. DT/R bar stands for data transmit/receive bar. इसका मतलब क्या है कि ये DT/R bar decides the direction of data flow. Whenever 8086 wants to read, जब हम पढ़ते हैं, नोटबुक से पढ़ते हैं, आपका ब्रेन कहाँ से कहाँ डेटा ट्रांसमिट होता है, आपके नोटबुक से आपके ब्रेन में डेटा ट्रांसफर होता है. So whenever 8086 reads anything, तो data will get transferred from memory to 8086. और अगर राइट करना है, जब आप राइट करते हो तो डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होता है, आपके ब्रेन से ट्रांसमिट होता है नोटबुक में. सिमिलरली 8086 भी मेमोरी में जब राइट करेगा तो डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होगा, 8086 से मेमोरी में ट्रांसफर होगा. इसका मतलब है कि डेटा दो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. एक तो 8086 से मेमोरी में जा रहा है और दूसरा है मेमोरी से 8086 में आ रहा है. ये ऑपरेशन हो गया राइट ऑपरेशन और ये ऑपरेशन हो गया रीड ऑपरेशन. हु डिसाइड्स दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो? तो डेटा transmit/receive bar pin of 8086 and this bus trans receiver will decides the direction of data flow. Let's take an example that we want to write, this is data available in 8086 and we want to write it into memory. That means we want to go for write operation. Write operation करना है, इसका मतलब डेटा कहाँ से कहाँ जाना है, 8086 से मेमोरी में राइट करना है डेटा. तो डेटा क्या हो रहा है, 8086 ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है. तो ट्रांसमिट इज एक्टिव हाई एंड रिसीव इज एक्टिव लो. अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो इस पिन पे ये जो है वो कनेक्टेड रहेगी
8286 के टी को, और वहां पे वो क्या भेजेगा, 1 भेजेगा, 0 नहीं भेजेगा, बिकॉज 8086 को राइट ऑपरेशन करना है। और ये राइट बार है, ये राइट बार क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अगेन एक्टिव लो. We know that we studied this in previous video. So what will happen, first 8086 will transmit 0 on this line and it will activate the buffers of 8286 and then it will transmit this bit. So first it transmit and then it transmits 1 on data transmit / receive bar. So then 8286 will decide the direction. अभी इसको पता चल गया है कि उसे कहां से कहां डेटा ट्रांसमिट करना है, उसे 8086 से मेमोरी में डेटा ट्रांसमिट करना है. So then it will transfer the address and then it will transfer this data to the memory. अगर रीड ऑपरेशन होता तो यहाँ राइट बार 1 होता और रीड बार 0 होता, और फिर इसका अगर रीड ऑपरेशन है तो वो रिसीव ऑपरेशन होता है. रीड ऑपरेशन में हम नोटबुक से रीड करते हैं, इसका मतलब हमेशा डेटा नोटबुक से आपके ब्रेन में फ्लो होता है. तो अगर 8086 को ब्रेन माना जाए तो रीड ऑपरेशन में डेटा फ्लो होगा मेमोरी से 8086 में. तो इसमें उस केस में इस सिग्नल पे, इस पिन पे क्या फ्लो होगा, इस पिन पे 0 फ्लो होगा, 1 नहीं ट्रांसमिट होगा. So understood? I hope you understood this DEN bar and data transmit / receive bar. Now let's go to the next pin. That is INTR pin number 18, NMI that is non-maskable interrupt pin number 17, and INTA bar that is interrupt acknowledgement pin number 24. अभी एक assume करो ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है. आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास ब्रेन है और ये आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है जिसमें 7 क्वेश्चंस है. ये आपका फ्रेंड है, इसे भी असाइनमेंट सॉल्व करना है दूसरे सब्जेक्ट का जिसमें 5 ही क्वेश्चंस है. आप इंटेलिजेंट हो, आप आपका असाइनमेंट्स खुद सॉल्व कर सकते हो. तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, 2 कर लिया और 3 कर लिया, और अभी आप 4th वाला क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया है और आप सॉल्व कर रहे हो. लेकिन ये जो फ्रेंड है आपका, इसको इतना ब्रेन नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है. तो इसको अगर अपना असाइनमेंट सॉल्व करना है तो इसे क्या चाहिए, आपका हेल्प चाहिए. ये क्या करेगा, आपसे असाइनमेंट सॉल्व करेगा. तो फ्रेंड क्या करेगा, आपको फोन करेगा मोबाइल पे. मोबाइल पे अगर आपको फोन करता है, आप ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे. डिस्टर्ब होना यानी आप क्या हो जाओगे, इंटरप्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका जो काम है, आप जो असाइनमेंट्स लिख रहे हो वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है. तो आपके फ्रेंड ने आपको क्या किया है, इंटरप्ट किया है फोन करके. फिर ये फ्रेंड आपका रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा भी असाइनमेंट आप सॉल्व कर दो. और आप क्या करोगे, पहले आप आपका क्वेश्चन 4 जो सॉल्व कर रहे थे वो पहले आप कंप्लीट कर लोगे. उसके बाद आप आपके फ्रेंड का असाइनमेंट सॉल्व करोगे और उसको अपना ये पूरा असाइनमेंट सॉल्व करके उसको रिटर्न करोगे. और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपका रिमेनिंग क्वेश्चन आपके अपने असाइनमेंट के सॉल्व करने हैं. तो अगेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम 5, 6 एंड देन 7. अभी ये सेम सिचुएशन है. नो ये सेम सिचुएशन है. ये आपकी जगह अभी आपका ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है और इसके पास ब्रेन है, और ये दूसरा एक डिवाइस है, इसके पास ब्रेन नहीं है. माइक्रो प्रोसेसर का ये मेन प्रोग्राम है जिसमें कि 7 इंस्ट्रक्शंस है और इसे ये 7 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है. दिस इज डिवाइस, अनदर डिवाइस, and it has to execute another program. This program is different and this program is different. ये जो डिवाइस का प्रोग्राम है इसको क्या बोलेंगे, इंटरप्ट रूटिंग बोलेंगे. और जो 8086 को जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसको क्या बोलेंगे, मेन प्रोग्राम बोलेंगे. ये दोनों प्रोग्राम्स कहाँ है, मेमोरी में है. ये यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए अंदर दिखाए हैं प्रोसेसर के और डिवाइस के. बट दीज प्रोग्राम्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन मेमोरी. ओके, बट एट डिफरेंट लोकेशंस, एट डिफरेंट एड्रेसेस. एड्रेस क्या है आपको अभी पता है. नाउ सी, 8086 has brain and it can execute its program. तो जैसे आपने आपके क्वेश्चन सॉल्व किए, ये 8086 भी अपनी इंस्ट्रक्शंस सॉल्व करना या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना बोल सकते हैं, ये स्टार्ट कर देगा.
and then it will start executing the instruction. It will execute first instruction, second instruction, third instruction, and now it is executing its fourth instruction. अभी फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है. अभी ये डिवाइस को भी अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इसके पास ब्रेन नहीं है. ब्रेन किसके पास है? 8086 के पास है. तो ये डिवाइस क्या करेगा? 8086 को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे भी अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा दो. लेकिन रिक्वेस्ट करेगा, जैसे आपके फ्रेंड ने आपको क्या किया था? कॉल किया था, तो आप डिस्टर्ब हो गए थे. अब ये तो वैसे कॉल नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा. किस पे सिग्नल भेजेगा? ये जो INTR पिन है, INTR मीन्स इंटरप्ट, बिकॉज दिस डिवाइस इज इंटरप्टिंग द 8086. क्योंकि क्या हो रहा था? ये तो अपना प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, और अभी इंस्ट्रक्शन नंबर 4 वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और बीच में ही क्या किया है? इस डिवाइस ने इसको इंटरप्ट किया है बाय सेंडिंग logic 1 on this pin because it is active high, there is no bar. तो ये क्या करेगा? 1 पर. When 8086 receives logic 1 on this pin, it understands that this device wants to get this program executed. जैसे 8086 के इंटरप्ट पिन पे 1 रिसीव होता है, 8086 को ये समझ में आया है कि इस डिवाइस को अपना ये जो इंटरप्ट रूटीन वाला प्रोग्राम है, ये मुझसे एग्जीक्यूट करवाना है. तो वो 8086 क्या करेगा? पहले अपना इंस्ट्रक्शन नंबर 4 जो वो एग्जीक्यूट कर रहा था, वो पहले खत्म करेगा. उसके बाद दिस इज अनदर पिन ऑन 8086 दैट इज नोन एज INTA बार, दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट. इट इज एक्टिव लो, तो इस पे क्या जाएगा? 0 जाएगा. इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट मीन्स it indicates that 8086 is ready to execute this program. इसका मतलब है 8086 इसके ऊपर अगर 0 गया है डिवाइस को, इसका मतलब है 8086 रेडी है ये इंटरप्ट रूटीन एग्जीक्यूट करने के लिए. तो उसके बाद क्या होगा? देन इट विल go here and it will start executing. Go here means ये प्रोग्राम कहाँ सेव है? मेमोरी में सेव है. तो अभी माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? मेमोरी के उस लोकेशन पे जाके ये प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस फेच करना स्टार्ट कर देगा और 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा. जैसे ही ये पांचों इंस्ट्रक्शंस इसकी एग्जीक्यूट हो जाती है, अभी क्या करना है 8086 को? अभी इसको वापस आना है, क्योंकि उसे अपना मेन प्रोग्राम भी कंटिन्यूअस करके खत्म करना है. देन इट विल एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन 5, 6 एंड 7 एंड दिस इज हाउ इट विल फिनिश द एग्जीक्यूशन ऑफ मेन प्रोग्राम. तो इसको बोलते हैं इंटरप्ट हैंडल करना. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, दैट इज दिस इज सिंपल INTR एंड दिस इज NMI. NMI मींस नॉन मास्केबल इंटरप्ट. अभी इस डिवाइस ने, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके इतने क्लोज नहीं है, और वो अगर आपको इंटरप्ट करता है और बोलता है कि मेरा असाइनमेंट सॉल्व करके दो, तो देयर आर चांसेस कि आप अवॉइड करो. आप बोलो कि नहीं नहीं, मेरा मेन प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपना ही करूंगा, तुम्हारा नहीं एग्जीक्यूट करूंगा. लेकिन हो सकता है कोई क्लोज फ्रेंड हो जिसका प्रायोरिटी हायर है, जिसका असाइनमेंट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो? अवॉइड नहीं कर सकते हो. अवॉइड नहीं कर सकते हो मीन्स इट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट. तो अगर ये डिवाइस इस पे इंटरप्ट, दिस इज सिंपल इंटरप्ट, अगर इस पे रिक्वेस्ट भेजता है तो 8086 मे रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. आई सेड मे रिफ्यूज ही करेगा, ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन विच प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट, दिस और दिस. लेकिन इफ दिस डिवाइस सेंड्स इंटरप्ट ऑन NMI, अगर ये 1 इसके ऊपर भेज दे और ये डिवाइस इस डिवाइस को कनेक्ट कर दे और ये इसको ना कनेक्ट हो और इसके ऊपर अगर 1 भेज दे, देन इन दैट केस 8086 cannot avoid this program. It has to stop execution of this. It has to go here, execute it, and then again come back here. So this is difference between simple INTR and this is non-maskable interrupt. Now let's go to the next pin, that is hold and HLDA. Pin number 31 and pin number 30. Now I have shown 2 devices. This is device 1 and this is device 2. Again same concept. This is 8086. ये क्या है? मेन प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट कर रहा है और ये डिवाइस 1 है. अभी यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? इट इज यूज्ड फॉर DMA. व्हाट इज मीनिंग ऑफ DMA? DMA मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मीन्स जब हमें ह्यूज डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को ट्रांसफर करना होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस.
अब ये डिवाइस 1 इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है और डिवाइस 2 भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है, या तो फिर ये मेमोरी हो सकता है, ये मेमोरी हो सकता है, या एक इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है और एक मेमोरी हो सकता है. सो एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. ओनली थिंग इज device 1 wants to transfer this data to device 2. तो एक डिवाइस है, जैसे एक मूवी होता है तो जीबी में होता है, और अगर आपके ड्राइव में सेव है और आपको पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना है तो क्या हो गया, ये डेटा ट्रांसफर कर रहे हो आप एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में. तो सिमिलरली दिस डिवाइस 1 वांट्स टू ट्रांसफर दिस 5 बाइट्स टू डिवाइस 2. ये 5 बाइट्स एग्जांपल के लिए दिया है, जनरली दिस इज फॉर ह्यूज मेमोरी डेटा ट्रांसफर, दिस पीस आर यूज. तो ये डिवाइस व्हाट इट विल, अभी हाँ, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है कि डिवाइस 1 के पास बस नहीं है, 8086 के पास बस है. इसको डिवाइस 1 को डेटा तो ट्रांसफर करना है डिवाइस 2 को, लेकिन इसके पास अपना खुद का बस नहीं है. तो जब भी अगर हमें कहीं भी जाना होता है और हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए बस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं. अगर पिकनिक पे भी जाना है और बस नहीं है तो हम बस बोरो करेंगे. तो सिमिलरली ये डिवाइस 1 भी क्या करेगा, 8086 से बस बोरो करेगा. कैसे बोरो करेगा, इट विल सेंड सिग्नल ऑन होल्ड पिन, क्योंकि ये बोल नहीं सकता, दिस इज डिजिटल डिवाइस, सारे सिग्नल सारा कुछ कहना सुनना 1 और 0 के लैंग्वेज में ही होगा. 1 मीन्स 5 वोल्ट, 0 मीन्स 0 वोल्ट. So device 1 will send logic 1 on hold pin to 8086. When 8086 receives logic 1 on hold pin, it understands that this device 1 wants the control of buses. Now suppose 8086 is executing same situation, it has executed till instruction 3 and presently अभी instruction 4 वो execute कर रहा है, और इंस्ट्रक्शन 4 एग्जीक्यूट करते करते बीच में ही ये होल्ड पिन पे 1 आ गया. तो क्या करेगा, पहले फर्स्ट इट विल फिनिश द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन 4, क्योंकि वो 4 एग्जीक्यूट कर रहा था और उसके बीच में ही ये होल्ड पे रिक्वेस्ट आया है. तो 8086 को ये समझ में आया है कि इस डिवाइस को अभी बसेस की जरूरत है और मुझे बसेस देना है. तो पहले वो एग्जीक्यूशन कर लेगा इंस्ट्रक्शन 4 का, देन इट विल रिलीज द बसेस, बसेस को वो फ्री करेगा डिवाइस 1 के लिए. लेकिन ये फ्री किया है, डिवाइस को कैसे पता चलेगा, सो इट विल सेंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू डिवाइस 1 ऑन दिस पिन. दिस इज होल्ड एक्नॉलेजमेंट पिन. Hold acknowledgement pin sends the acknowledgement that buses are available for data transfer. Buses उसने दे दी है डेटा ट्रांसफर के लिए और बसेस अभी अवेलेबल है. ये कैसे पता चलेगा, डिवाइस 1 को 8086 लॉजिक 1 भेजेगा on HLDA pin to device 1. Q, because this is also active high. So it will send logic 1 to device 1. जैसे device 1 it receives logic 1 on HLDA pin, it understands that buses are available for data transfer and then it transfers the data to device 2. Remember that again it is always a copy paste operation, यानी कट पेस्ट नहीं होता है. जहां से ट्रांसफर हुआ वहां भी वो डेटा रहेगा और जहां पे ट्रांसफर हुआ है वहां पे भी वो डेटा अवेलेबल रहेगा. सो अंडरस्टूड, दिस होल्ड पिन इज यूज्ड फॉर बस रिक्वेस्ट and HLDA is acknowledgement that okay, buses are available for data transfer, and this is used in case of direct memory access. That means whenever device 1 wants to transfer used data to device 2, we use hold and HLDA pin. Now next pin. Now request slash grant and request slash grant 0. This is 1 and this is 0. Now again let's take same example. This hold and HLDA pins we use in minimum mode, और ये जो pins है ये maximum mode में यूज होती है. अब पहले केस में क्या था, डिवाइस था जिसको डेटा ट्रांसफर करना था, तो बसेस के लिए रिक्वेस्ट की डिवाइस ने 8086 को ऑन होल्ड पिन. अभी मैक्सिमम मोड में है, प्रोसेसर को प्रोसेसर कनेक्टेड. मैक्सिमम मोड मींस व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स इन द सिस्टम. अब ये डिवाइस नहीं है, ये प्रोसेसर है और इसे अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है. ये 8086 है, इसका भी अपना प्रोग्राम है, दिस इज मेन प्रोग्राम. अब ये प्रोसेसर है, इट कैन एग्जीक्यूट, it has a brain, it can execute its
प्रोग्राम, लेकिन इस प्रोसेसर के पास बसेस नहीं है. दिस जनरली हैपेंस व्हेन वी कनेक्ट 8087 मैथ्स को प्रोसेसर टू 8086. अब इसके पास ब्रेन तो है एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन इसके पास बसेस नहीं है. So what this processor will do, again situation is same. Suppose 8086 is currently executing this instruction, instruction 1 is over, 2 is over, 3 is over, and it is executing say instruction 4. अभी ये प्रोसेसर 2 को अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, so it will send, now both are this request and grant, both are active low, so processor will send logic 0 on this pin to 8086. When 8086 receives logic 0 on this pin, it understands that processor 2 needs 8 buses and it will release the control of buses and will make these buses available to processor 2. लेकिन अभी processor 2 को कैसे पता चलेगा कि buses available है? तो it will send logic 0 on the same pin to processor 2. This is grant signal and this one was request. प्रोसेसर 2 ने किया रिक्वेस्ट भेजा और फिर 8086 ने क्या किया, एक्नॉलेज किया इसको बाय ग्रांटिंग द बस रिक्वेस्ट. पहले इसमें क्या था, होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट, दैट वाज इन मिनिमम मोड, दिस इज फॉर मैक्सिमम मोड. तो बसेस अवेलेबल होती है, जैसे ही बसेस अवेलेबल होती है प्रोसेसर स्टार्ट्स फेचिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन. रिमेंबर दैट दिस प्रोग्राम इज आल्सो इन द मेमोरी, दिस प्रोग्राम इज आल्सो इन द मेमोरी. जैसे ही प्रोसेसर का खत्म हो जाता है एग्जीक्यूशन, इट विल गिव द कंट्रोल ऑफ बसेस बैक टू द 8086 and then 8086 can again start execution of remaining program. Now what is this lock pin? It is connected to processor 3. This is multiprocessor system से, और ये जो दूसरा पिन है request/grant1, इसको हम दूसरा प्रोसेसर कनेक्ट कर सकते हैं. ये इसको एक किया और इसको दूसरा किया, तो इस प्रोसेसर को अगर अपना एग्जीक्यूशन करना और बसेस चाहिए, सो इट विल सेंड लॉजिक 0 ऑन this pin and then grant pin will be there on the same pin. Now what is lock pin? When this signal is active, this is active low. Active means when it is low, it indicates to the other processor not to ask the CPU to leave the system bus. अगर ये 0 भेज रहा है, इट इज आउटगोइंग सिग्नल, 8086 बाहर भेज रहा है, इसका मतलब कि अभी 8086 बिजी है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, कुछ तो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो प्रोसेसर को बता रहा है कि अभी मुझे बसेस मत मांगो, मैं आपको बसेस अवेलेबल नहीं करा सकता हूँ. अंडरस्टूड? सेंडिंग 0 ऑन दिस पिन टू द प्रोसेसर इंडिकेट्स दैट I am not in a condition to allow you to access my buses. I don't have buses available. My buses are busy. Now then next pin is test pin. What is test pin? अभी जैसे ही ये प्रोसेसर 2 को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना था और उसने इसको एक रिक्वेस्ट भेजा, then 8086 released the buses, then it sent the request grant and then it started executing. जब ये एग्जीक्यूट कर रहा है, now it is using the buses, the processor 2 is fetching these instructions from the memory and executing. same time पे 8086 को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो भी सेम ही बसेस यूज करके वो मेमोरी से अपना इंस्ट्रक्शंस लेके आए, क्योंकि ये भी प्रोग्राम मेमोरी में है. तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, एज लॉन्ग एज दिस प्रोसेसर इज बिजी इन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट विल सेंड लॉजिक 1 ऑन दिस पिन. टेस्ट पिन, दिस इज एक्टिव लो, जब तक यहाँ पे लॉजिक 1 है, इसका मतलब 8086 अभी बसेस नहीं वापस ले सकता, क्योंकि इसे कैसे पता चलेगा कि इसका काम हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक. तो एज लॉन्ग एज दिस पिन इज 1, दैट मीन्स बसेस 8086 कैनॉट टेक हिज बसेस बैक. जैसे इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, इट विल सेंड लॉजिक 0 ऑन दिस पिन, और फिर 8086 क्या होगा, अपना बसेस वापस ले लेगा, एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन 5, 6 एंड 7. नाउ नेक्स्ट इज QS1 एंड QS0. दिस आर पिन नंबर 24 एंड 25. वी यूज दिस इन मिनिमम मोड. सिंपल है. These are Q status signal.
Q हमने पढ़ा है when we studied memory segmentation. What is Q? Q is in bus interface unit. 8086 fetches 6 instructions in advance and keep it in the queue. These signals provide the status of instruction queue. अब हमें अगर पता करना है कि अंदर queue का status क्या है, क्यों कुछ कर रहा है, क्यों एम्प्टी है, क्यों भरा हुआ है, क्या स्टेटस है, ये कैसे पता चलेगा? तो सिर्फ हमें ये QoS0 और QoS1 के पिन्स का स्टेटस देखना है। अगर 0 है दोनों पिन पे, इसका मतलब कोई भी ऑपरेशन अभी नहीं हो रहा है। अगर ये पिन का स्टेटस 0 है और ये पिन का स्टेटस 1 है मींस 5 volts आर अवेलेबल, इट मींस फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम द क्यू इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड. ओके, if it is 10 means it indicates that queue is empty, और 11 है इसका मतलब subsequent byte from the queue is getting executed. So QoS0 and QoS1 shows the status of queue. Now next pins are S0, S1 and S2 pins. These pins are used in maximum mode. These are pin number 26, 27 and 28. Maximum mode में क्या होता है? We connect this 8288. What is 8288? It is bus controller IC to 8086. Maximum mode में 8086 को ये बस कंट्रोलर आईसी कनेक्ट करेंगे. इसके पास भी S0, S1 और S2 पिंस है और इसके पास भी S0, S1 और S2 पिंस है. ये हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और बेस्ड ऑन स्टेटस ऑन S0, S1 और S2 8288 जनरेट्स डिफरेंट सिग्नल्स. ये देखो एडिशनल सिग्नल जनरेट हो रहा है, यानी इसकी जो पिंस है ये 8288 की पिंस है, ये पिंस ये फंक्शन करेगी. कौन सा फंक्शन करेगी? अगर S0, S1, S2 तीनों पे 0 है, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, all 3 is 0, so it generates interrupt acknowledgement signal. तो आप इस पिन को एज ए इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन यूज कर सकते हो. अगर इस पे 001 है तो आप 001 के लिए इनपुट आउटपुट रीड. ये देखो मिनिमम मोड में देयर आर डायरेक्टली रीड बार एंड राइट बार पिन्स अवेलेबल, and then there is memory/IO bar, and then combination of read bar, write bar and memory/IO bar we can use for input output read, memory write. लेकिन मैक्सिमम मोड में क्या होता है? ये पिन्स अवेलेबल नहीं है. तो ये पिन्स कैसे अवेलेबल होगी? 8288 ये पिन्स अवेलेबल करके देगा बाय यूजिंग प्रॉपर कॉम्बिनेशन. तो अगर आपको इनपुट आउटपुट रीड करना है, इनपुट आउटपुट यानी आउटपुट रीड नहीं होता है, इनपुट ही रीड होता है. अगर कीबोर्ड को रीड करना है तो ये पिन आप यूज कर सकते हो 8288 का. अगर मॉनिटर में राइट करना है, आपको आउटपुट डिवाइस में राइट करना है, देन यूज दिस पिन. लेकिन अगर ये पिन यूज करना है एज अ राइट पिन तो यहाँ पे आपको क्या डालना होगा? 010. ये कौन भेजेगा? 010 8086 भेजेगा. Then halt pin, opcode fetch. Opcode fetch means fetching instructions from the memory. जब 8086 को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, so it fetches the instructions from the memory. तो उसके लिए भी मेमोरी को एक सिग्नल जाना चाहिए. तो वो कैसे जाएगा? You have to enter 100 on this, or 8086 will send 100 on these 3 pins and then use this pin and connect it to memory for opcode fetch. मेमोरी रीड, मेमोरी राइट के लिए क्या कॉम्बिनेशन है? 101 and 110, and 111 means it is passive, it will not do anything. So I hope you understood the remaining pin functions of 8086. If you have any queries, please write in the comment section. Thank you.